x and y is called as no x or y. Come on, help me. Second कौन सा है बेटा? Here बेटी, here next कौन सा है बेटा? No x or y के बाद second कौन सा है? Second type the x is y. All x's are y. All x's are y. जितने भी x है सब y है. The second type is nothing but all x are y. इसमें क्या होता है? It is also x implies y. What happened here? How diagram is situated? X will be inside y. X will be subset of y. Yeah. X will be subset of y. मैं diagram में बाहर वाला y आएगा, अंदर वाला x आएगा, and this is nothing but x subset y. Shading common part को share करने का और लिखने का x subset y. Very nice, very nice. For a Malviya बेटा, what is third type of diagram बेटा? All x's are y's and all y's are x. Yeah, it is all x's are y's and all y's are x. What happened here? Here is also x double implies y आता है ना? And what is statement बेटा? X equal to y. X is equal to y. And diagram कैसा आएगा? Diagram में कैसा आएगा? खाली एक ही सर्कल आएगा जहाँ पर x और y दोनों सेम है. Yeah. जहाँ पर x और y दोनों सेम है. These are first three types of diagram. These are first three types of diagram. Fourth type of diagram क्या था बेटा? What is the fourth type of GS Savla? Fourth type of diagram? Sir, एक मिनट. Yeah, जो ले book खोल ऊपर. 5 टाइप का डायग्राम है. नो एक्स आर वाई, ऑल एक्स आर वाई, ऑल एक्स आर वाई एंड ऑल वाईस आर एक्स. मतलब सेम डायग्राम. यहाँ पर बोला है कि जितना भी एक्स है सब का सब वाई के अंदर है, सब का सब वाई के अंदर है. तो एक्स अंदर है, वाई बाहर. यहाँ पर दिया थोड़ा देख लिया. और एक्स और वाई साथ है, मतलब सम एक्स आर वाई. इट इज नथिंग बट सम एक्स आर वाई. ये डायग्राम था. उसमें भी दो है, ए और बी. यहाँ पर नो सबसेट रिलेशन, नो सबसेट रिलेशन, कोई सबसेट रिलेशन नहीं है. तो देयर विल बी टू इंटरसेक्टिंग सर्कल एक्स एंड वाई. देयर विल बी टू इंटरसेक्टिंग सर्कल एज अ कॉमन पार्ट. जब भी कुछ कॉमन नहीं है तो देयर विल बी टू इंटरसेक्टिंग सर्कल. देयर इज नो सबसेट. So I can say x intersection y is not equal to empty set. And if a subset is there, which subset? The second part, y is a subset of x. यहाँ पर क्या बोले? Some x. x बड़ा है, उसमें some part. Some ये पूरा x है, उसमें some part is y. Some x, ये x में से some part of x is y. तो अगर subset होगा, if y is a subset of x, diagram कैसा आएगा बेटा? Any idea? जिया सावला. बाहर x is big and y is small. तो बड़ा वाला बाहर आएगा से y और y को शेडिंग करने का. दिस इज यू, मतलब y is a subset of x. ऑलमोस्ट सेम है ये और ये. यहाँ पर सब x's are y अथवा all y's are x. all y's are x होगा. So these are the four types diagram which we have studied last lecture में. Last lecture में we have studied these four types of diagram. No x are y, all x are y, all x are y and all y's are x. Some x are y, some x are y पे दो डायग्राम था. We have studied first lecture में we have studied about which sentences are called as statement in logic. Then we went for symbolic presentation of a statement. Then we have made compound statement by using logical connective. Then we made symbolic form of statement from verbal form to symbolic form to verbal form. Then we have seen converse, inverse, contrapositive of an implication. We can have converse, ulta. We can have inverse same with negative, contrapositive मतलब ulta भी और negation भी. Then we after converse, inverse and contrapositive we went for the truth value. Truth value में and होगा TTT और होगा तो FFF. एंड होगा तो TTT और होगा तो FFF. इम्प्लाइज होगा तो TFF. इम्प्लाइज होगा तो TFF और डबल इम्प्लाइज होगा तो TTT FFT. TTT एंड FFT. ये हमने बहुत सारा देखा. ट्रूथ टेबल बनाया. ट्रूथ टेबल के बाद में हमने देखा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट. वी हैव सीन ड्वेल और का एंड का और. Open sentences can be converted into statement in logic. Such statements are called as what? Quantified statement. उसके बाद हमने देखा
negation of a compound statement, negation of a conjunction, negation of disjunction, negation of implication, negation of double implication. We have also seen equivalent statement of implication. पता है क्या है equivalent statement बेटा? What is P implies Q logical equivalent to what? Anybody? Not P. Contrapositive. Equivalent to contrapositive. Not P or And Q. not P or Q. Very good. Two things है double single implication में. It is not Q implies not P. It is also equal to not P or Q. And we have even seen the negation. Negation of P implies Q. Anybody? What is the negation P of and not implies Q. P and not P Q. and not. इतना सारा किया. अभी Venn diagram last part था. No X are Y's, all X are Y's, all X are Y's and all Y's are X. Some X are Y's. And the last diagram and then the last part of a chapter will complete this chapter. Today's last part is not so important. Exam में आता नहीं है, but खाली objective में अभी आने का full chance है. बाकी there is no scope of coming in exam. So here it is the type 5. Here it is type 5. Type 5, it is some X are not Y. Some X are not Y. Same ही है. खाली word आता है not. And not we will show in diagram. Not we will show in diagram. Again, there are two cases. Case A and case B possible. Case A, no subset possible. No subset, neither X subset Y nor Y subset X. Diagram कैसा आएगा? There will be two intersecting circles. There will be two intersecting circle X and Y. बताओ, where I should set some X to share करने का, but not Y. Some X but not Y. Where I should set? Not Y's. मतलब Y X को to share share करने का, X to share करने का. सर Y को Not क्यों Y. समझाणु नहीं सर? શું बोला? अभी बीच में मत बोलो विदुषी. एक तो रॉन्ग बोलते हो, फिर दूसरे को कंफ्यूज होता है. क्वेश्चन पढ़ो इंग्लिश में. X को शेयर करने का बट नॉट Y. X को करने का बट नॉट Y. विदुषी खबर पड़ी बेटा? एंड लिखना क्या है? X minus Y is not equal to empty set. X minus Y is not equal to empty set. And subset होगा. Subset मतलब Y is a subset of X. Compulsory second statement subset of X. डायग्राम भी कैसा होगा? डायग्राम होगा एक बड़ा वाला आएगा X, अंदर आएगा Y. Come on, anybody where I should share? कहाँ शेयर करूँ? Y को सर्कल को छोड़ के. Okay, Y को छोड़ के सर्कल X को. हाँ. X को करने का, लेकिन Y को नहीं करने का. This is nothing but X minus Y. This is nothing but X minus Y not equal to empty set. Come on, make it fast. Write down the heading Sir. type 5. Write both the diagrams. बोलो कुछ नहीं बोलो. X minus Y not equal to a null set. ये कैसे रहता है? मतलब some members are available. Shading मतलब members are available. Shading अच्छा. मतलब members are available. સર ફોર્થ નું પણ બી પાર્ટ તો સેમ જ હતું ને? હા, fourth નું બી બી પાર્ટ છે, મને શેડિંગ વચમાં આવશે. શેડિંગ માં ફરક થશે. चलो बेटा चलो. हेलो बेटा, थैंक यू लेकिन कम ऑन 20th नहीं सर, हो बेटा. પારો સર हाँ, रुक रहा हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं. कम ऑन 21st शाम से करने का. 21st to 27th. સર મારું થઈ ગયું, પાણી પીને આવું છું. હા, વાંધો નહીં. તો આવે આ પછી આપણે તો પાણી પીવાની શું છે?
ખબર નહીં સર આવું સર 2 મિનિટ આટલો સાતમાં રાખવાનો ને હા સર કાલથી રાખું છું अबे अभी लेके या फिर से लगेगा पानी पीने के लिए हेलो क्वेश्चन Sir, नंबर સર ખમો અરે હું એ જ પૂછવા જતો હતો કે તમે પહેલા ડાયાગ્રામની ઉપર શું લખેલું મારું બોર્ડ બહુ બ્લર છે ફર્સ્ટ ડાયાગ્રામ માં એ લખેલું હતું નો સબસેટ ઓકે સર બસ આપ જણાવો બસ બસ અને ડાયાગ્રામ ડ્રો કર્યું हाँ सर सर डायग्राम के नीचे आपने x माइनस वाई नॉट इक्वल टू नल सेट नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट तो सेम दोनों में सेम ही रखा हेलो क्वेश्चन नंबर 21 some rectangles are not square some rectangles are not square the not who we will not consider we will consider in shading part चलो what we will be say क्या आएगा इसमें बेटा what is let p q and u શું આવશે બેટા बताओ set of all rectangles yeah this will be set of all rectangles very nice what is q set of all squares yeah this will be set of all squares and here set it will of all be quadrilaterals very good set of all quadrilaterals પછી લોકો વેન ડાયાગ્રામ डायग्राम बनाओ पहला चेक करो डायग्राम में सम एक्स और वाई जैसा है ना इज इट क्यू सबसेट ऑफ वाई इज इट क्यू सबसेट ऑफ पी इज इट ऑल स्क्वायर रेक्टेंगल no व्हाट नो पैरेललोग्राम છે એના અંદર બે Yes. પાર્ટ હોય रेक्टेंगल एंड रोम्बस और दोनों को मिला के स्क्वायर आता है तो स्क्वायर इज ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम स्क्वायर सब होता है तो यहाँ सबसेट है तो डायग्राम ये वाला आएगा डायग्राम में क्या आएगा बाहर आएगा रेक्टेंगल दैट इज पी अंदर आएगा क्यू और शेडिंग क्या करोगे सम रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर तो स्क्वायर को शेड नहीं करने का ओनली वी शुड शेड द पी पार्ट एक्सेप्ट द क्यू पार्ट ये पूरा पी पार्ट को शेड करने का ये पूरा पी पार्ट को शेड करने का ऐसा एंड वी शुड राइट दैट P minus Q is not equal to empty set. P minus Q is not equal to empty set. ऐसा लिखने का समझा ये सब चीज याद रखना पड़ेगा कोऑर्डिनेटर नंबर्स में सबसे बड़ा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें दो पार्ट आता है रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स रियल नंबर में दो पार्ट रैशनल एंड इरैशनल रैशनल में इंटीजर के अंदर होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर ये कॉन्सेप्ट याद रखना जरूरी है સર રિયલ પછી બે પાર્ટ કયા છે रियल પછી બે पार्ट છે रैशनल एंड इरैशनल इसमें भी दो पार्ट है विच इज नॉन फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन नॉन फ्रैक्शन तो इंटीजर फिर होल नंबर और फ्रैक्शन मतलब वो होता है मिक्स फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन અને કોમ્પ્લેક્સ ના પાર્ટ કયા છે રિયલ અને इमेजिनरी रियल एंड इमेजिनरी और इसमें पैरेललोग्राम में दो पार्ट है रेक्टेंगल एंड रोम्बस और दोनों को मिलाएगा तो स्क्वायर बस ये दो ही चीज है जो सबसेट में आता है बाकी नहीं आता कम ऑन क्वेश्चन नंबर 22 कम ऑन हेल्प मी यश वोरा क्वेश्चन नंबर 22 हाँ सर some squares of integers are not odd numbers yeah So- some squares of integers are not odd numbers so what is solution ma what is let p मतलब क्या बेटा set of all squares of integers come on can you give me some example square of integers 1 આવશે 4 આવશે 9 આવશે ऐसा ना 16 25 and so on okay what is q मतलब set of all odd numbers odd numbers what is u मतलब set of all numbers now check करो diagram में is it all odd numbers are square of integers
ऑड No. नंबर्स मतलब क्या आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, 5. इज इट ऑल दीस आर स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स? No. नो. तो कौन सा डायग्राम आएगा, पहला के दूसरा? सबसे पहला वाला। First. पहला वाला डायग्राम. This will be universal set. This will be P. This will be Q. And first part to share करेगा. First part, entirely first part we have to share. And लिखना same है, P minus Q is not equal to empty set. P minus Q is not equal to empty set. Come on, बेटा, बराबर है. Come on, Daniel Makwana. Yes, sir. Ready for the next term, beta? Yes, sir. 1 minute. I'll read it still. Yeah. 23rd. Some real numbers are not natural numbers. Okay, some real numbers are not natural numbers. 23rd sum. Some real numbers are not natural numbers. What I can write? Set of all. Set of all. P is set of all real numbers. Set of and all set natural numbers. numbers and set of all numbers. Yes. But is it natural number subset of real number? Is Yes. it natural number subset of real number? Again same Yes. diagram, no? Same diagram. Very good. बस खाली आपको सबसेट रिलेशन वो कोऑर्डिनेटर में आता है और वो नंबर सिस्टम में आता है, बाकी किधर नहीं आता. સર આમાં સેકન્ડ ડાયાગ્રામ આવશે ને? हाँ, सेकंड डायग्राम. चलो राहुल बेटा, थैंक यू. 23rd सम. राहुल ठक्कर 23rd सम हो गया कि कर रहा है? કરું છું સર. કરો. એના પછી 24th સમ ને આન્સર આપજો. હા સર. सम के बदले मैंने लिए चलता है. થયું સર. मैंने सर्वेंट्स आर नॉट નોટ ग्रेजुएट. ગ્રેજ્યુએટ્સ. हाँ बोलो क्या आएगा? पी मतलब એ મતલબ सेट ऑफ સેટ ઓફ ઓલ સર્વન્ટ્સ सर्वेंट्स मतलब क्या? પીપલ. पीपल हु डू द वर्क, नौकरी करता ना वो. सर्वेंट मतलब वो मेड नहीं है, मतलब काम करता है जो. और ये सेट ऑफ ऑल ગ્રેજ્યુએટ્સ. ग्रेजुएट्स. तो इज इट ऑल ग्रेजुएट्स आर ओनली सर्वेंट? आप पढ़े लिख के खाली सर्वेंट बनोगे? नहीं सर. नहीं ना, मालिक भी बनोगे ना, प्रोप्राइटर भी बनोगे ना. हाँ. इसमें से बहुत जन प्रोप्राइटर बनेगा. सेट ऑफ ऑल पीपल. विच डायग्राम? फर्स्ट के सेकंड? सेकंड डायग्राम ओनली. सॉरी, फर्स्ट डायग्राम ओनली. फर्स्ट डायग्राम ओनली. चलो सेम છે. 24 भी सेम છે, 25 भी सेम છે, 26 भी सेम છે. 24, 25, 26 બધા સેમ છે. એ પર્લ બેટી ક્યાં રખડવા બેટી? હા પર્લ બેટી, વેર યુ વેન્ટ? પાણી પીવા? હા મને ખબર હતી. વોટર જરા ફેસ તો દેખાડ. આટલું સાઈઝમાં દેખાડે કેવી ખબર પડે પર્લ? શરમાય છે શું તું? You look very smart. You look very smart, definitely. So make it proper arrangement. देखो बाकी सब बच्चे कैसे बैठे हैं. क्या शर्माती है? तो ये उर्दू दिखाते हैं. कैसी बाई है? हेलो हेलो हेलो.
Come on, Palak बेटी. Palak, 25th question. Many government servants are not corrupt. What will you write? P, Q. P P मतलब equals to set of all government servants. okay. Let Q set of all non-corrupt. Not non-corrupt. people. खाली corrupt. Corrupt Corrupt people. and set of all people. Non तो यहाँ पर mark कर देगा अपन लोग. We will mark non here. हो गया. Same question, same answer. Set of all government servants, set of all corrupt people, set of all people, and non I will mark in a diagram. सर कितना मार्क्स हो दिया? एक मार्क का. One diagram, 1 mark. सर ये फर्स्ट डायग्राम आएगा नहीं? हाँ फर्स्ट डायग्राम आएगा. चलो मन्नू भाई रेडी. ओ मन्नू भाई. सर તમે એક વખત સેકન્ડ ડાયાગ્રામ નહીં ફર્સ્ટ ડાયાગ્રામ સમજાવો સર. अरे फर्स्ट डायग्राम जो है सबसेट नो आवे ने सबसेट तो आ डायग्राम आवे. मतलब सर चेक करवानो. सेकंड इज इट क्यू सबसेट ऑफ पी मतलब इज इट ऑल करप्ट पीपल आर ओनली गवर्नमेंट सर्वेंट? नो. तो नॉट अ सबसेट मतलब कंपलसरी फर्स्ट डायग्राम. अगर सबसेट होगा इज इट ऑल नेचुरल नंबर रियल नंबर? हाँ ऑल नेचुरल नंबर रियल नंबर. तो दिस यस. गेटिंग. हाँ जी. मन्नू हाय तो बोल. तू शर्मा किस हुआ बे? हाय सर. हाँ शर्मा का नहीं. 26 क्वेश्चन बोलने का. हाँ सर. Some NRIs are not rich. तो सेट ऑफ ऑल NRI. Right? Which हाँ, Q set of set all of all rich people. rich people. Is it all rich people are NRIs? मतलब confirm rich मतलब NRI होता है? No. No. Again same diagram. हाँ. Very nice. मनु भाई very good. 25th में फर्स्ट डायग्राम है. हाँ 25th का भी फर्स्ट डायग्राम, 26th का भी फर्स्ट डायग्राम because there is no subset. There is no subset relation. चले गोस्वामी. क्या हुआ गोस्वामी? हाँ सर. स्मिथ क्या हुआ बेटा? स्मिथ शाह. સર 23rd સમમાં સેકન્ડ ડાયાગ્રામ આવશે ને? हाँ सेकंड डायग्राम बराबर. सर 25th सम में हम लोग को क्यू सेट ऑफ ऑल करप्ट पीपल लेना है ना? सेट ऑफ ऑल. नेगेशन नहीं लेने का. नेगेशन डायग्राम में दिखाएगा. नेगेशन आई विल शो इन डायग्राम. थैंक यू. अभी ऑल क्वेश्चंस हो गया? नहीं सर. अभी का पूछ रहा हूँ मैं. बैठा है बेचारा. हाँ सर. ओके. वेरी गुड. कम ऑन मोक्ष यादव. क्या बात कर रहा है? किससे बात कर रहा है? नहीं सर बात नहीं कर रहा. तेरा हो गया काम? 26 हो गया? हाँ सर 26 तो हो गया. कौन शैली घेरानी? 24 वाला डायग्राम है. बे सर्कल से 24, 25, 26 सेम डायग्राम. सर पानी पीना. 24, 25, 26 सेम डायग्राम. खाली लिखावट अलग है. કમોન ધ્રુવી માનુશાલી હજી બેરી છે કે બોલી શકે છે? बोली सब कुछ. हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड. चलो बेटा चलो. પાછો ધ્રુવી માનુશાલી કેમ વિડિયો બંધ મૂકી દીધો? चले खोना. अलग सॉल्व करवाना. क्या बोला? 27 अलग अलग सॉल्व करवाना. 27 क्वेश्चन एक है पर डायग्राम 3 आएगा उसमें. तो 26 માં બી ફર્સ્ટ ડાયાગ્રામ છે ને? 26 का भी फर्स्ट डायग्राम. 26 में भी फर्स्ट डायग्राम.
24th ના ફર્સ્ટ માં ફર્સ્ટ ડાયાગ્રામ આવશે. हाँ 24, 25, 26 सेम. અરે ના સર ક્વેશ્ચન 24 જે લાસ્ટ ના 24th માં भी हाँ फर्स्ट डायग्राम બરાબર છે. કમ ઓન ક્વેશ્ચન નંબર 27 માં એમાં બધામાં લેટ सेम જ છે. लेट P Q U सब में सेम है. Come on, help me. क्या आएगा? देवांशी शाह. Read all the 3 questions of question number 27. Yes, sir. So P will be set of all poets, then Q will be set of intelligent people. First, beta, read all the questions first. Read कर पहला बता क्वेश्चन तो read कर बेटी. Devanshi, what I'm saying, you first read the question and then we will go for the let. ले क्या होएगा? Kashish Jain, come on, read all the 3 questions. Yes, sir. Some poets are intelligent. All Mhm. poets are intelligent. No poet is intelligent. तो फर्स्ट में है सम एक्स आर वाई. सम एक्स आर वाई बराबर है. सेकंड में क्या है? ऑल एक्स आर वाई. और लास्ट में क्या है बेटा? नो एक्स आर वाई. ये 3 अलग अलग डायग्राम है. 3 अलग अलग डायग्राम है पर तीनों में एक्स वाई सेम ही है. तो क्या लेगी कशिश जैन? पी क्या करेगी इसमें? पहला पी सेट ऑफ all poets. सेट ऑफ ऑल पोएट्स. क्यों मतलब? Set of all intelligent poets. You're not intelligent poet. Intelligent people. You can write intelligent people. Poet को join नहीं करने का. Poet तो हो गया. Set of all poets, set of all intelligent people, and the last में so I can write set of all people. Okay. Getting Kashish Jain? સર આમાં યુ ના આવી શકે સેટ ઓફ ઓલ પોએટ્સ. ना. Set of all poets अलग से होगा. Set of all intelligent people अलग से होगा. And set of all peoples अलग से होगा. And there will be Venn diagram. There will be three Venn diagram. सूर्य क्या वही गई थी रे? ધ્રુવી દેવાંશી રોશી. હા કીધું કર. સર મેં અનમ્યુટ કર્યું પછી મારું વાઈફાઈ ચેન્જ થઈ ગયું જીઓ થી સાચે. सबसे पहला कैसा आएगा? यूनिवर्सल सेट सम एक्स आर वाई. तो सम एक्स आर वाई में चेक करने का सबसे ले गया. इज इट ऑल इंटेलिजेंट? मतलब खाली पोएट्स ही होता है. एनी इंटेलिजेंट में नहीं. तो देयर विल बी अ इंटरसेक्टिंग सर्कल. There will be intersecting circle and shading part will be this way. This will be P intersection Q is not equal to MP set. This is my first diagram. Okay, what the second diagram says? All poets are. Who बोल रहा है ऐसा? All poets are intelligent. So second diagram will be all X are Y. मतलब डायग्राम में कैसा होगा? जितने भी poets है सब इंटेलिजेंट है. तो बाहर वाला कैसा आएगा? Q. अंदर क्या आएगा? P और P को शेयर करने का. This will be U. Here it will be P subset Q. बराबर है. And last mark to also no X or Y. मतलब there will be diagram where poets have the different area and intelligent people have different area. मतलब P intersection Q is equal to MP set. अच्छा. Okay. This is now 3 diagram 3 marks. 3 diagram 3 marks. This entire question have 3 marks. हाँ पूछूं. સર આ સેકન્ડ વાળું નો સમજાણું. अरे क्वेश्चन है ना all X or Y. This is just like all X or Y. चेक करो all X or Y how we solve. जितना भी X है सब Y के अंदर है. All poets are intelligent. The poets are going inside the intelligent. Getting बेटा उमंगी? સર ઓલ એક્સ આર વાઇઝ માં ઓલું વન સર્કલ નહીં આવે. वो तो all X are Y and all Y are X पूरा आना चाहिए. All poets are intelligent and all intelligents are poets. तो एक ही शक्ल आएगा. Question should be in that format. સર મને એ વાળું ન સમજાણું. બોલો શું હતું એમાં? પણ ના ક્વેશ્ચન Some poets are intelligent. Some poets are intelligent. मतलब it is following which one? Some X are Y. सम एक्स और वाई में 2 डायग्राम है. ऐसा एक डायग्राम है और एक के अंदर एक डायग्राम है. तो यहाँ पर आपने क्या लिया? पोएट्स लिया, इंटेलिजेंट लिया. चेक द सबसेट. इज इट इंटेलिजेंट मतलब पोएट्स ओनली?
हाँ सर। मतलब जितने भी इंटेलिजेंट दुनिया में सब पोएट्स ही है। नहीं सर। हाँ के ना, दो में से एक ही आंसर ना आएगा। ना सर ना। तो ये थोड़ी आएगा, यही आएगा डायग्राम। अच्छा हाँ समझा एक बार। तो ये डायग्राम आएगा, वो चेक करेगा क्यू सबसेट पी है कि नहीं है, तो ऐसा नहीं है तो वो सिर्फ नंबर्स में आएगा और पैराग्राम में आएगा, और किधर नहीं आता सबसेट, और किधर भी नहीं आएगा। सर ये पूरा करके दिखाना पड़ेगा। हाँ बेटा, ये इतना पूरा दिखाना ही पड़ेगा। 3 मार्क का सम है पूरा, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क, पर तीनों के लिए पी क्यू यू कॉमन आएगा। वो सबके लिए अलग अलग लिखने का जरूरत नहीं है, सबके लिए अलग अलग लिखने का जरूरत नहीं है। चलो बेटा, थैंक यू बेटा। नहीं सर। सर मैं पानी भी क्या? पानी लेके या पी के क्या आ रहा है? सर एक बार सेकंड वाला समझाओ ना। पढ़ना क्या दिया है? बोला है ना, ऑल एक्स आर वाइट। इट इज सेड ऑल एक्स आर वाइट, मतलब क्या? हाउ टू ड्रॉ डायग्राम ऑल एक्स आर वाइट? 2 सर्कल अंदर और ऑल एक्स आर वाइट में पूरा एक्स वाई के अंदर है ना, जितना भी एक्स है सब वाई के अंदर है ना, बराबर से बेटा? नहीं सर। पढ़ना बेटा, क्वेश्चन पढ़ना, मालूम पड़ेगा। पढ़ो क्वेश्चन। हाँ सर पढ़ा। क्या पढ़ा? ऑल पोएट्स आर इंटेलिजेंट। इट इज विच टाइप डायग्राम? ऑल एक्सिस आर वाइज। डायग्राम देखो, ऑल एक्स वाई के डायग्राम कैसा है? ऑल एक्सेस आर वाई का डायग्राम मतलब कैसे सब पॉइंट इंटेलिजेंट ही होते हैं। ऐसा वो बोल रहा है, ऐसा वो क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, इसके लिए कर देने का। मैंने कुछ केम बाय के वीडियो बोलो तो पूछने मैंने के जवाब सर विनीतन अस्मिन अंदरलो मैंने उनको थर्ड वाला रब मत कर। वीडियो क्यों बनता, पूछो उनको वीडियो क्यों बनता। वीडियो बंद रखेगा तो क्या करेगा तू? ओके, 24th क्वेश्चन, सब में सेम है। 24th क्वेश्चन, कम ऑन हेल्प मी। 24th क्वेश्चन, रूट फॉर मेटा हेल्प मी रीड द 24th क्वेश्चन बेटा। Draw the Venn diagram for the truth of the following statements. There are students who are not scholars. There are scholars who are students. There are persons who are students and scholars. अच्छा, तो इसमें भी सब में कॉमन आएगा, P कॉमन, Q कॉमन और U कॉमन। व्हाट इज P मतलब? व्हाट शुड आई राइट रूट फॉर मेटा? P set of all students. Set of all students. Q set of all scholars. Scholar people. Set of all scholar people. Okay. U set of all people. Set of all people. Very nice. Come on, first diagram. इसमें ABC ने first diagram, सब में Venn diagram आपको draw करना है। बोला है Venn diagram draw करने का। और इसमें से और एक पूछना चाहिए कि which two statements have the same meaning? Which two statement by looking to diagram? वो दिया नहीं है पर ऐसा एग्जाम में आया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से there are students who are not scholars, बताओ कैसा आएगा? there are students who are not scholars, तो बताओ is it all scholar मतलब students only? scholar मतलब खाली students ही होते हैं क्या? नहीं। तो ये दो अलग अलग सर्कल आएगा। there will be two different circles. where should I shade? कहाँ पर शेड करूँ बेटा? In P. Only P, only P. And here this will be P minus Q. P minus Q not equal to empty set. This is the first diagram. Come on, second diagram में कैसा आएगा? Second क्या पूछा है कि there are scholars who are students. There are मतलब some students are scholars, वही फॉर्मेट में हो गया। This is some students, that is P. These are scholars and this is the intersection part. So there are students who are scholars.
there are scholars who are students. मतलब P intersection Q is nothing but not equal to empty set. Third में क्या आएगा? There are persons who are both. मतलब there is a person named student, there is a person named scholar, and where to shade? Again in the middle part we have to shade, and this is P intersection Q is not equal to empty set. मतलब what conclusion you can make? What conclusion you can make? Conclusion you can make is that from above Venn diagram, what can you say from above Venn diagram? Okay, statement 2 and 3 are identical. के have same meaning. जैसा उन्होंने बोला ऐसा लिखने का, लेकिन यहाँ पर बोला नहीं है, वो भूल गया लिखने का मैं. बाकी ऐसा ही आता है कि कौन सा दो डायग्राम का मीनिंग सेम है. तो डायग्राम 2 and 3, statement 2 and 3 have the same meaning. By looking to the Venn diagram, I can say statement 2 and 3 have the same meaning. What happens, Smith beta? Smith sir, ફર્સ્ટ વાળું સમજાવો ને કો. first વાળામાં શું કીધું છે? There are students who are not scholars. So students છે but not scholars. Getting beta? Getting? સર બી સમજાવો ને બી. તો સર એમાં ફર્સ્ટ વાળામાં બંને અલગ અલગ નહીં આવે. मतलब अलग अलग कैसे आवे? लोग कीधું છે ને કે intersection છે, मतलब it is just like some x are not y, ऐसा है. अलग अलग सर्कल कैसा आएगा? अलग अलग सर्कल नो x और y बोला होगा तो अलग अलग सर्कल आएगा. बाकी इंटरसेक्टिंग में ही करने का बेटा. दिस इज सम x are not y फॉर्मेट, फर्स्ट डायग्राम. एंड सेकंड में सम x are y, ये भी सेम ही है, सम x are y, पर वर्डिंग अलग रीते दिया है, पर है सम x are y. ये भी सम x are y, ये भी सम x are y. अरे क्या हुआ आर्यन बेटा, बता. સર બી એક વાર સમજાવો ને, બી અને સી. हाँ बात नहीं, बी અને સી बात नहीं, आज છે સમ x और y तो से बात. there are scholars who are students. ये शेडिंग क्या वही है ना, there are scholars who are students. हाँ ये पार्ट क्या, ये पार्ट. सर पहला तो आपने लिखा कि p सेट ऑफ मैं पूछता हूँ बता, ये पार्ट क्या है जब मैं टिक मार्क किया, वो पार्ट क्या है? scholars, स्कॉलर पीपल. व्हाट अबाउट दिस? students. ये वाला you set of all people, सब people who are neither student nor scholar. हाँ तो ये वाला पार्ट शेडिंग क्या है, वो पार्ट हाँ क्या है? हाँ क्या? वही जो स्टूडेंट्स है जो स्कॉलर है. हाँ वही तो पूछा है ना, स्टेटमेंट में. તો સર પહેલા ક્વેશ્ચન આપ્યું હશે તો પહેલા આપણને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું કે કયું ટાઈપ છે અને પછી ડાયાગ્રામ બનાવવાનું. हाँ डायग्राम वो 5 में से ही आएगा. डायग्राम ये 5 में से ही आएगा. डायग्राम आप 5 માંથી જ આવશે. ઓકે સર. और शेडिंग करना कंपल्सरी, सिस्टमेटिकली शेडिंग करने का. वो शेडिंग से मालूम पड़ेगा आपको क्या शेड किया है. સર એક સેકન્ડ માં હું ચાર્જ લે. शू स्मिथ अंधा बहरा हो गया है. हाँ इसे रिज्वाइन करेगा ना. चलो हो गया. Sir, am I Now- put students are neither people are neither students nor scholars. तो बाहर का शेडिंग आएगा, दो सर्कल के बाहर का शेडिंग आएगा. दो सर्कल का बाहर का शेडिंग में आएगा. Okay sir. पर ऐसा ही एग्जाम में ऐसे ही आएगा, अपना घर का नहीं आएगा. ऐसा तो कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं. पर हमारा स्टेट बोर्ड बहुत अच्छा है, जो बोलता है ना वो एग्जाम में आता है. और उसमें तो बहुत अच्छा है कि मेरा अच्छा खासा 6 10 सेटिंग है, जैसा मेरे दिमाग में आता है ना एग्जाम में ऐसे ही आता है. नाउ नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ अ चैप्टर, that is we have to find the truth value of compound statement without truth table.
truth value of compound statement, truth value of compound statement without truth table, without truth table, without truth table. ये पार्ट लास्ट पार्ट है. This is very less important. मतलब एग्जाम में आने का चांस बहुत कम है. Very less chance in coming exam. But 90% people don't teach only, but we have to explain because this is very important for people who are going for CA. हाँ बोलो क्या हुआ? वेटेज कितना है? बोलो बोलो क्या बोल रही है बेटा? विरुचि आवाज नहीं है, मेरा नेटवर्क गया था. वेटेज नहीं है ना, मतलब ये एग्जाम में नहीं आता है, बहुत कम है. वेरी लेस चांस टू कम इन एग्जाम. बट दिस कैन कम इन ऑब्जेक्टिव पार्ट. दिस आएगा ना. मेरे टेस्ट में क्यों नहीं आएगा? मेरे दिखाए मतलब आएगा, क्यों नहीं आएगा? पढ़ना पड़ेगा. पढ़ने का तो है ही है, पढ़ना तो है ही है. बोर्ड एग्जाम के लिए भी 2-3 क्वेश्चन में दूंगा, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है. बाकी एकदम इजी है. कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. पीपल हु आर गोइंग फॉर सीए, people who are going for CS, CMA, any professional course they are going, this part is very important for students going for CLAT exam. Very important part for these people. कोई भी professional course के लिए बहुत important है. Truth value of compound statement without truth table. इसमें certain rules are there. Certain rules are there which already we have learned. Already we have learned. There are 7 rules. Out of these 7 rules, almost 5 rules we have done. 2 rules we have to explain. तो देखो टेक्स्ट बुक में देखो पेज नंबर 23 में द फर्स्ट रूल ये बचपन में किया है. ये बचपन में किया है पर नाम नहीं किया है. बस अभी नाम याद रखने का है. आइडेंपोर्टेंट लॉ. आइडेंपोर्टेंट लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. आइडेंपोर्टेंट लॉ. आइडेंपोर्टेंट लॉ बोलता है कि P और P is nothing but P. P and P is also nothing but P. मतलब हमने देखा है बेटा 2 into 1 भी 2 होता है, 3 into 1 भी 3 होता है. आइडेंपोर्टेंट लॉ. एडिशन में 2 plus 0 is 2, 2 minus 0 also 2. ऐसा आइडेंपोर्टेंट लॉ where P और P is P. अपन देखा होगा A intersection A is A. A union A is also A. This is called as idempotent law. कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है. खाली नाम याद रखो. सेम टू सेम सेम. और एंड में क्या मतलब है? एंटायर ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट विदाउट ट्रूथ टेबल, विदाउट इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन. इसमें इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन नहीं आना चाहिए. अगर आ गया तो निकालने का. वो कैसा वो मैं दिखाता हूँ. आइडेंपोर्टेंट लॉ. फर्स्ट वन इज आइडेंपोर्टेंट लॉ. The second one is associative. The second one is nothing but associative law. इसमें कैसा होता है? P और ब्रैकेट में Q और R. This is also logical equivalent to P और Q ब्रैकेट में और R. This is also logical equivalent to P और R और Q और logical equivalent to P और Q और R. What is associate करने का? Associate करो either second third or first third or first second or all 3 together. मतलब मुझे एडिशन करना है 2 plus 3 plus 4. I can add 2 plus ब्रैकेट में 3 plus 4 तो भी आंसर सेम आएगा. I can add 2 plus 3 ब्रैकेट में plus 4 तो भी आंसर सेम आएगा. I can add 2 plus 4 पहला ब्रैकेट में and then 3 आंसर सेम ही आएगा. सेम आएगा. You can associate either second third, you can associate first second or you can associate first third. Answer will be same. The word is associative property. The word is associative property. Same way 2 into 3 into 5 ऐसे. तो अगर आपने 2 into पहला 3 into 5 मल्टीप्लाई करो फिर 2 से मल्टीप्लाई करो. अथवा 2 into 3 पहला मल्टीप्लाई करो फिर 5 से करो. कि 2 into 5 पहला करो फिर 3 करो. Answer will be same. Answer will be same to same. बोलो क्या आएगा मल्टीप्लाई करेगा तो? 30. Is it 2 minus 3 minus 5? The associative property will be same.
मतलब 2 माइनस पहला 3 माइनस 5 करो, हाँ सर। -3 पहला और फिर ना। -5 करो, 2 माइनस 5 पहला ना, नहीं, सर। इसमें माइनस में नहीं होता है, माइनस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, खाली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होता है, पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर और में और एंड में होता है, सेम वे एंड में भी होता है, P एंड ब्रैकेट में Q एंड R एंड और ये सेकंड थर्ड करो, ये फर्स्ट एंड थर्ड पहला करो एंड R, ये पहला फर्स्ट एंड फोर्थ करो एंड Q, अथवा और साथ में करो, चलता है एंड और एसो वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसोसिएशन मतलब एसोसिएट करो, पहला दूसरा के दूसरा तीसरा के पहला तीसरा के सब साथ में, एसोसिएशन, एसोसिएटिव लॉ। The third one is commutative law. Commutative law मतलब सेम, either P and Q करो के Q and P करो, सेम ही होता है, मतलब 2 + 3 करो के 3 + 2 करो, सेम होता है, 2 × 3 करो के 3 × 2 करो, सेम होता है। Is it 2 - 3 and 3 - 2 सेम होता है? नहीं। मतलब नहीं, इसके सर। पास सब्ट्रैक्शन के पास ये लॉ नहीं है, कम्यूटेटिव लॉ नहीं है। अरे डिवाइड करो, 2 / 3 and 3 आर दे सेम? नो, इसके पास भी नहीं है, खाली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के पास है, ऐसा एंड के पास भी है, ऐसा और के पास भी है, ऐसा एंड के पास है और के पास है। कम्यूटेटिव लॉ फर्स्ट इज आइडेम्पोर्टेंट लॉ, आइडेम्पोर्टेंट कुछ काम का नहीं है, एसोसिएटिव वर्ड काम का है, कोई भी करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल टुगेदर, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वाला એટલે कम्यूटेटिव लॉ क्या है, जाओ दिया, पर याद रखने का, पहला दूसरा के दूसरा पहला, पहला दूसरा, ये इम्प्लीकेशन में डबल इम्प्लीकेशन में नहीं आता है, इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन में नहीं आता है, कम्यूटेटिव लॉ। The third one के बाद fourth one, very important, distributive law, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने का, P और ब्रैकेट में Q एंड R, ये क्या फर्क है इसमें और इसमें, क्या फर्क है? एनीबॉडी डिफरेंस कैन नोटिफाई? सर एमा P और છે, આમાં P and છે, मतलब नहीं Q और છે, Q और और जगह और है Q इधर and R एक है। છે। और अंदर और बाहर सेम सिंबल है, यहाँ पर अंदर और बाहर सिंबल सेम नहीं है, मतलब 2 ब्रैकेट में 3 + 5 अथवा 2 ब्रैकेट में 3 × 5, क्या फर्क है दोनों में? दोनों में क्या फर्क है? बाहर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन है। Where I will expand, where I can expand? First में I can expand. What I can expand? 2 × 3 plus 2 × 5. Can I expand here also 2 × 3 × 2 × 5? No, I can't expand. Here I can't expand. Same sign, I can do association. Same sign, I can do this I can't do. But I can do 2 × 3 × 5. Even I can do 2 × 5 × 3. I can go for the association, but not expansion. Here I can go for the expansion. Come on. Here also I can go for the expansion. I can multiply with Q, I can multiply with R. What will happen? This will be P और Q एक ब्रैकेट में, P और Q एक ब्रैकेट में, P और Q एक ब्रैकेट में, and P और R. P or will go to Q also, P or will go to R also, P or Q and P or R. Same way P and bracket na Q or R. Come on, anybody can expand? Anybody can expand? P and Q or P and R. This will be P and Q or P and R. Very good. Expand करने को आना चाहिए ऐसा। ये इधर एसोसिएशन प्रॉपर्टी लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा एसोसिएशन प्रॉपर्टी? बिकॉज सिंबल सेम नहीं,
सिंबल सेम होगा तो ही एसोसिएशन, बाकी एक्सपांशन प्रॉपर्टी, ये 4 रूल है। जरा ध्यान से रीड करो, अपने बुक में से कुछ लिखने का नहीं है, खाली रीड करो, प्लीज कॉपी डाउन नहीं करने का है, खाली 4 रूल रीड करो। सबसे इंपॉर्टेंट है एसोसिएशन, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, 2 बहुत इंपॉर्टेंट। कम ऑन मेगा गोयल, रीड कर 4 रूल। What is the first rule? Idempotent law. Second one is associative law. Third one is commutative law. The fourth one is distributive law. Mega. Yes, sir. बता मुझे P and ब्रैकेट में Q and R, which law I can apply? Associative के distributive? Associative. What is what I can write? What I can associate? P and Q in the bracket, and So then we can associate P and Q and R bar, or also can associate what? P and Q and मतलब I can associate first and third, वो लिखा नहीं है, first and third and second bar, ख्याल से, and P and Q. हाँ. and all together P and Q and R. You can do anyway association. Come on, Nishikandi, P and bracket में Q or R. Which property I can apply? First one के second one. Associative के distributive. Nishikandi. कौन सा? Distributive. Come on, apply. What will happen? P and Q एक ब्रैकेट में और P and और R. वेरी गुड। कैसा मालूम पड़ा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट लगाने का? हाउ यू कम टू नो वेयर टू तो अप्लाई अलग distributive? सिंबल है ना? हाँ, बाहर अलग है, अंदर अलग सिंबल है, इसलिए आई कैन अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव। व्हाई वी कैन नॉट अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव हियर? अरे कैसा लगाएगा? यहाँ पर सेम साइन है, आई कैन गो फॉर एसोसिएशन, not for distribution. Distribution you can apply only and only if there are different signs. If there are different signs, so we can apply distribution law. बाकी we cannot apply. भैया समझा भाई? Next one, very, 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 very important. Fifth one is identity. समझा भाई? ये बहुत important है भाई. फिर complementary. Complement law, identity law, complement law. Turn करो पेज को, 5th point and 6th point. Very, 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 very important. Identity law and complement law. Identity law and complement law. हमारे 4 थे. 1, 2, 3, 4. P and T, P and T, P or T, P or T. बताओ. Anybody can guide me? What can be the answer? What can be the answer? We can have the truth value. पहले आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ, फिर शॉर्टकट देता हूँ और वो शॉर्टकट याद रखिएगा। देखो पहला वाला T मतलब क्या? Anybody? T मतलब क्या? Tautology. T मतलब tautology. T मतलब क्या? Contradiction. Very good. अच्छा P और T बताओ, और डायग्राम में P और T बताओ, P का कितना पॉसिबिलिटी है? हाउ मेनी पॉसिबिलिटी फॉर द P? ओनली 2 पॉसिबिलिटी, ट्रू एंड फॉल्स। और टोटोलॉजी में ट्रू। चलो P और एंड T, P एंड T, एंड मतलब फर्स्ट कॉलम में P यहाँ पर F कैसा है? एंड मतलब TTT, एंड मतलब TTT, और TTT यहाँ पर नहीं है, इसे फॉल्स। This T and F resemble P column के P column. yes. P column. So this is P answer. This is P answer. अच्छा यहाँ पर एंड के बदले और होगा तो 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 True. T and T मतलब टोटोलॉजी होगा ना? This will be tautology. हाँ यहाँ पर सॉरी यहाँ पर टोटोलॉजी। अच्छा C में यहाँ पर T और F आएगा, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब F फॉल्स और फॉल्स। अच्छा P एंड C, एंड मतलब
ट्रू देव में एफ बनने में एफ मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। हाँ अच्छा, और होगा तो 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 P और F P आएगा P। मतलब बाकी पी आओगे। आपको ये बायात करना पड़ेगा, पी एन टी सी, पी एन टी सी, पी और टी सी, टकला हो जाएगा बायात करेगा तो। एनीबॉडी के सर दरवाजा पर कोई जो जाए ना 2 मिनट। हाँ, तू दरवाजा मत जा, थोड़ा पानी पीवा जाए, दरवाजा मत जाए, खबर नहीं चू चू करता हो। यू हैव टू रिमेम्बर 2 वर्ड्स। इफ यू विल रिमेम्बर 2 वर्ड्स, एवरीथिंग विल बी सिंपल। क्या याद रखने का 2 वर्ड? विच 2 वर्ड्स यू शुड रिमेम्बर? और एंड और मतलब टी, और मतलब टी, एंड मतलब टी, बस यही आपको याद रखने का। और मतलब टी एंड मतलब टी, और मतलब टी एंड मतलब टी, दिस यू हैव टू रिमेम्बर। और मतलब टी, और मतलब टी, और मीन्स टी, और मीन्स टी, और मतलब टी एंड मतलब टी, और मतलब टी एंड मतलब टी। ये वाले को तो रट्टा हो जाना चाहिए, लाइक अ वाटर। और टी एंड टी, और टी, और मतलब टी एंड मतलब टी, और मतलब टी एंड मतलब टी, और मतलब टी एंड मतलब टी। तो मतलब क्या? मतलब क्या? और है सर क्या अगर एंड है? एक मिनट रुकना, और है क्या एंड है? एंड है एंड मतलब C एंड मतलब C यानी C एंड मतलब सी ना, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी नहीं है, It नहीं will है, be P. नहीं है तो स्टेटमेंट, नहीं है तो स्टेटमेंट। एंड नेक्स्ट में एंड है, एंड में सी है, हाँ सी है हाँ तो सी है तो सी, एंड में सी है तो सी, एंड में सी है तो सी, नहीं है तो स्टेटमेंट, नहीं है तो स्टेटमेंट। एंड में एंड होय ने तो सी हो तो सी, नो हो तो स्टेटमेंट। और में T सी है हाँ तो टी, ए टी है, टी है नहीं तो स्टेटमेंट। पीछे जरूर एंड मतलब C सी है, उधर है ऊपर नहीं, ऊपर है, सी है, ऊपर नहीं है। नहीं है तो स्टेटमेंट। यहाँ पर सी है हाँ तो सी, एंड मतलब सी, एंड मतलब सी है तो सी, बाकी स्टेटमेंट। और मतलब T टी है तो टी नहीं है तो सी, नॉट टी नहीं है तो स्टेटमेंट, टी नहीं है तो स्टेटमेंट, नहीं है तो स्टेटमेंट, नहीं है तो स्टेटमेंट, है तो स्टेट, है सर तो शॉर्टकट एक बार बाजू समझाओ ना। और यार खाली ये वस्तु और मतलब टी हजी जा दरवाजो खोल, बाहरનું गेट खोल, બધું खोल, पानी पी आओ, पानी करी आओ, બધું કરી आओ, પછી आओ, वीर खो ना। और मतलब टी सर हूं न तो और मतलब टी एंड मतलब सी, और मतलब टी एंड मतलब सी, इतना ही याद रखने का है। और मतलब टी एंड मतलब टी है तो टी आएगा, नहीं है तो स्टेटमेंट, है तो टी आएगा, नहीं है तो स्टेटमेंट। अभी एंड मतलब सी है तो सी, नहीं तो स्टेटमेंट। एंड में इधर सी है, हाँ के ना सी है फर्स्ट स्टेटमेंट में, No. नहीं है तो स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में सी है तो सी आएगा। और मतलब सी है तो टी आएगा। और इधर टी है नहीं है तो स्टेटमेंट। हो गया, इससे आपको बैठ करने का है। थोड़ा घुमा के देता हूँ, थोड़ा और घुमा के देता हूँ। चलो, फर्स्ट स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट। कैसा प्रूव करने का जरूरत नहीं है। पी और टी, पी और सी, पी एंड टी, पी एंड सी। कम ऑन हेल्प मी। पहला क्या आंसर आएगा? P C पहला कैसा आएगा? T क्यों? और है ना, और मतलब स्टेटमेंट, और मतलब टी है तो टी, और मतलब यहाँ पर P क्यों पी, सी क्यों नहीं? टी होगा तो टी, बाकी नहीं ना। एंड मतलब C इसमें है सी है नहीं तो पी। यहाँ पर C वेरी नाइस, कॉम्प्लीमेंट्री में दो है।
कॉम्प्लीमेंट्री में दो है, खुद एंड कॉम्प्लीमेंट्री, खुद एंड कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पर एंड आएगा, यहाँ पर और, इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट, सेम है बेटा, सेम है, एंड है ना, एंड है ना, एंड मतलब सी, और है ना, और मतलब सी, एंड मतलब सी और मतलब सी, एंड मतलब सी और मतलब सी, एंड मतलब सी और मतलब सी। टेक आउट द फॉर्मूला बुक, राइट दिस 5 टाइम्स। फॉर्मूला बुक में 13th डे में फॉर्मूला के बाद 5 बार प्लीज राइट डाउन प्लीज। अरे आइडेंटिटी वाला ही लिखना है ना? नहीं खाली इतना ही बस, ये नहीं लिखने का है, गांडा होता है, खाली यही शॉर्टकट टेक्निक ही लिखने का है। फॉर्म्युला बुक मध्ये सर सिर्फ और एंड ही ना? और एंड खाली बस। सर सही है। 5 बार लिखो, 5 बार लिखो, 5 बार मन में बोलो, और मतलब सी, एंड मतलब सी, और मतलब सी, एंड मतलब सी, और मतलब सी, एंड मतलब खाली बी लाइन લખવાની છે પાછો। बस खाली आ याद થઈ ગયું ને तो તમારું काम पती गયું भाई, काम पती गયું। अगर आपको याद हो गया मतलब काम हो गया। कम ऑन हेल्प मी जस्ट शाह। यस सर। नॉट पी एंड टी बोलो, क्या आएगा? नॉट पी एंड टी। क्या आएगा? टी। क्यों? एंड मतलब सी, सॉरी, हाँ एंड मतलब सी होता है। एंड मतलब सी, तो ये क्या आएगा? सी तो है नहीं, तो क्या आएगा? नॉट पी आएगा। ए भाई ऐसा कैसे चलेगा? इमीडिएटली एंड जाना चाहिए। कम ऑन प्रियांश जेडिया, नॉट पी और सी क्या आएगा बेटा? टी और मतलब टी और टी है सर, तो टी तो है नहीं, तो सी नेगेशन पी। स्टेटमेंट आएगा। अबे स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट नहीं, ये तो स्टेटमेंट आएगा। क्या कर रहा है? कम ऑन हेल्प मी, आस्क मी वदर पी और क्यू एंड सी, बता क्या आएगा? सी। सी, वेरी गुड, पूरा सी, पूरा स्टेटमेंट सी होगा। कम ऑन विदुषी पी और क्यू और सी आएगा तो क्या आएगा? पी और क्यू। या दिस विल बी पी और क्यू, स्टेटमेंट, पूरा का पूरा स्टेटमेंट आएगा। वेरी नाइस। कम ऑन हेल्प मी कशिश संघवी तो भारत से क्या थी बेचारी? बंसी जोशी बंसी जोशी बताओ, नॉट पी और टी, पी। बंसी नो वारो चाहिए बेटा, बोल काय बोल, ध्यान कर। मीरा नाता, नॉट पी और टी, नॉट पी और टी, नॉट पी, फैंटास्टिक। कम ऑन हेल्प मी निशिशा पी एंड नॉट क्यू और सी, बता क्या आएगा? पी एंड नॉट क्यू। निशिशा अवेलेबल? સર તમારું બોર્ડ અટકાઈ ગયું છે। મારું બોર્ડ અટકાઈ ગયું છે ના? हेलो सर। નિશિશા અવેલેબલ? નિશિશા સર તમે અટકાઈ ગયા। આવશે 2 મિનિટ ઉભા રહ્યો, 2 મિનિટ ઉભા રહ્યો, આવશે ભાઈ, આવશે। આવી ગયું સર। આવી ગયું ને? કાંઈ વાંધો નહીં, ચલો ઠીક છે, વિલ ગો ફર્ધર। નિશિશા અવેલેબલ નથી। આઇડેમ્પોર્ટન્ટ લો, એસોસિએશન લો, કમ્યુટેટિવ લો, ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ લો, 5th માં વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આઇડેન્ટિટી લો।
आइडेंटिटी के बाद नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड सी द लास्ट वन बेटा, सी द लास्ट लॉ कौन सा है? डी मॉर्गन। वो तो आपने कितनी बार किया, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, लास्ट वन इज नथिंग बट डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है एसोसिएशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ये दो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये 7 में से 5 हमेशा काम आता है। याद रखने का, और मतलब पी एंड मतलब सी, और मतलब पी एंड मतलब सी। Come on, see the first question. Question number 25. First question, without truth table prove करने का है, prove without using the truth table. Come on, read the first question. 25th का first question. First question, we have to prove P or bracket में Q and not Q equivalent to P prove करने का है। तो solution, we will just start with left hand side. Left hand side is nothing but P और ब्रैकेट में Q and not Q। तो सबसे पहले ब्रैकेट में चेक करो, डिस्ट्रीब्यूटिव के पहले ब्रैकेट में चेक करो, इज इट कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल? इज इट कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल? idempotent, इज इट कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल? हाँ, इक्वल एंड ऑपोजिट। एंड मतलब सी हो गया बेटा, P और C। दिस इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। डॉट डॉट डॉट, दिस इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। कम ऑन, नाउ वंस यू अप्लाई कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद हमेशा आइडेंटिटी आता है। आफ्टर कॉम्प्लीमेंट देयर इज आइडेंटिटी लॉ। बताओ कौन सा आएगा इसमें? और मतलब P आएगा, P आंसर। आंसर P आएगा, T होगा तो T आएगा। दिस इज नथिंग बट आइडेंटिटी लॉ। हो गया बेटा, दिस इज जस्ट लाइक राइट हैंड साइड। हो गया, मेरा क्वेश्चन हो गया। ये आप ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हो, लेकिन लंबा होता है, नीचे एकदम छोटा हो गया, एकदम छोटा हो गया। बट यू शुड नो ओनली द रूल्स, ओनली दी 7 रूल्स। वो 7 में से खाली 5 ही है, 1 2 3 4 5। कम्यूटेटिव आइडेंपोर्टेंट कभी काम में नहीं आता है। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। प्लीज राइट डाउन फास्ट। Come on, second question. Question number 2. It is P or bracket में not P and Q, logical equivalent to P or Q. Come on, what will apply first rule here? सीधा ब्रैकेट में कॉम्प्लीमेंट आता है। हाँ, सीधा ब्रैकेट में कॉम्प्लीमेंट आता है। तो which rule कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो which rule? Can I go for distribution के एसोसिएशन? डिस्ट्रीब्यूशन के एसोसिएशन, डिस्ट्रीब्यूट करो। डिस्ट्रीब्यूट, 2 ब्रैकेट आएगा, 2 ब्रैकेट P और नेगेशन Q and P और P और नेगेशन P एंड ब्रैकेट में P और Q ऐसा आएगा। दिस इज नथिंग बट 100% आई कैन से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो 2 ब्रैकेट है, दोनों में से कोई भी ब्रैकेट में कॉम्प्लीमेंट्री आता है। दोनों में से कोई भी ब्रैकेट में कॉम्प्लीमेंट्री फर्स्ट ब्रैकेट में और है ना, और मतलब P। दिस इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्री। हियर देयर इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब हियर दिस विल बी नथिंग बट P एंड ब्रैकेट में P और Q। 100% कॉम्प्लीमेंट लगाने के बाद हमेशा P और Q आइडेंटिटी। अभी आइडेंटिटी 2 स्टेटमेंट है ना, ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट। एंड मतलब P, पंक्ति है नहीं है, तो स्टेटमेंट पूरा का पूरा स्टेटमेंट P और Q। दिस इज नथिंग बट बाय आइडेंटिटी लॉ एंड विच इज नथिंग बट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब पूरा स्टेटमेंट लिखना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या लिखने का सर फाइनल आंसर? ये पूरा स्टेटमेंट पीछे,
पूरा स्टेटमेंट therefore I can say P और ब्रैकेट में नॉट P and Q is logical equivalent to P और सर आपने टी के हटा भी दे दो। ट्रूथ टेबल में से कर सकता है, ट्रूथ टेबल में से भी कर सकता है, बट वी आर आस्क्ड टू डू विदाउट ट्रूथ टेबल। क्या बोला बेटा? सर आपने टी के हटा भी दे दो। तो रूल है ना बेटा, अभी तो पढ़ा ना, रूल है ना, दोनों के बीच में एंड होगा ना, तो सी होगा तो खाली सी लिखने का, नहीं तो स्टेटमेंट लिखने का। ओके अगर एंड है, सी होगा तो सी लिखने का, नहीं तो स्टेटमेंट लिखने का। आपने स्टेटमेंट लिखा, क्यों स्टेटमेंट लिखा? क्योंकि सी नहीं है। ये रूल है। ये कौन सा रूल है? आइडेंटिटी रूल है। समझा बेटा? हाँ सर। Come on, try yourself. Third question. Third question. Negation of P or Q. P से और ब्रैकेट में negation of P and Q. Logical equivalence to not P. क्या करोगे? What will you do here? डी मॉर्गन। नहीं। डी मॉर्गन। हाँ, पहला डी मॉर्गन, फर्स्ट डी मॉर्गन लगेगा, बराबर। नेगेशन ऑफ पी और क्यू और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। बताओ क्या करोगे इससे? पहला फर्स्ट ब्रैकेट में डी मॉर्गन लगाओगे ना, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। चलो लगाओ, व्हाट विल बी द ब्रैकेट इफ यू अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ? नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और नॉट क्यू। नेगेशन नॉट क्यू, हाँ, और नॉट पी एंड क्यू, बराबर है। दिस इज बाय डी मॉर्गन। चलो अभी क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? अगर ऐसा है 2x + 2y है, कहने को 2 कॉमन है ब्रैकेट में x + y, नेगेशन को कॉमन लेंगे पी एंड हाँ, मतलब नेगेशन पी एंड, मतलब इसको कॉमन निकालेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ है, दोनों में नेगेशन एंड है, तो आई कैन जस्ट पिक आउट नेगेशन एंड कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में क्या बचेगा? नेगेशन क्यू एंड क्यू, नेगेशन क्यू और क्यू बचेगा। ठीक है, नेगेशन पी एंड कॉमन निकल गया, नेगेशन पी दोनों में से कॉमन निकला, तो नॉट क्यू और पी क्यू बचेगा, नॉट क्यू और क्यू बचेगा। नाउ दिस इज बाय डी मॉर्गन्स लॉ। रिवर्स किया, रिवर्स, दिस इज डी मॉर्गन्स, नॉट डी मॉर्गन, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव है, रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव। नाउ व्हाट टू डू? ब्रैकेट में क्या है? कॉम्प्लीमेंट। नाउ कॉम्प्लीमेंट, और मतलब P. This is complement now. Negation of P and T. Complement. Negation P. अबे and मतलब identity, and मतलब C, पर C तो नहीं है, तो statement. This is by identity, and this is nothing but my right hand side. हो गया पूरा statement. ट्राई टू अंडरस्टैंड, नहीं समझता है तो पूछो, ये आपका खुद का वेस है। अगर आपको ये रूल्स पता है ना, यू कैन एंजॉय। रूल्स पता नहीं है तो थोड़ा तकलीफ होगा, रूल्स पता है तो यू कैन एंजॉय। बोलो बेटा क्या हुआ? रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव का वो समझा। कौन सा समझाओ? सर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं समझा बस। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है? अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो नॉट पी एंड नॉट क्यू और नॉट पी एंड क्यू ऐसा सेम है, रिवर्स जाएगा तो ये नॉट पी एंड दोनों में है ना, तो कॉमन निकाला, नॉट पी एंड कॉमन निकाला, तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा? ये बचा, यहाँ पर आया और यहाँ पर आया और ये वाला यहाँ पर आया। दिस विल कम हियर, दिस विल कम हियर, दिस विल कम हियर। सर कॉमन लेना अलाउड है? हाँ, कॉमन निकालने का अलाउड है ना बेटा। वी कैन एक्सपांड आल्सो, वी कैन टेक आउट कॉमन आल्सो। अच्छा ठीक है सर। फिर वो ब्रैकेट में कॉम्प्लीमेंट्री आया, फिर पूरा आइडेंटिटी आया, फिर वो कैंसिल आ गया। हमेशा हम लोग पहला कॉम्प्लीमेंट आएगा, कॉम्प्ली के बाद आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी के बाद सीधा आंसर आएगा। हाँ बोल, क्या बोलता बेटा? सर डिस्ट्रीब्यूशन के जगह हम लोग टेकिंग नेगेशन पी एंड कॉमन लिख सकते। हाँ लिख सकता है, नेगेशन पी एंड कॉमन, मतलब वही हुआ। रिवर्स जो करते हैं तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं बेटा। कम ऑन, फोर्थ वाला सबसे बड़ा समय, जो मुझे करके दिखाएगा मान जाऊंगा।
Here it is bracket में P or Q and not P bracket में implies Q is logical equivalent to T. कभी भी implication नहीं होना चाहिए. नेगेशन लेके उसको कन्वर्ट कर. नेगेशन करने का है. बोलो कैसा करोगे ये समय? बहुत इंपॉर्टेंट समय. वेरी फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखने का. मैं चालू करूं समझाने का? कैन आई एक्सप्लेन कि यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ फर्स्ट. सर ट्राई कर रहे हो? करके निकालते हैं. इम्प्लीकेशन लास्ट में निकालने का. लास्ट में निकालने का. वो निकालना तो पड़ेगा ही. दिस इज P और Q एंड नॉट P से implies Q है. इज दिस ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री लगता है? नहीं. इज दिस कॉम्प्लीमेंटरी लगता है? नहीं. तो कैन वी व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट इन द बॉक्स ब्रैकेट? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. बताओ क्या आएगा फर्स्ट ब्रैकेट में? क्या आएगा? Negative P and P. P and not P. P and not P फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा. और सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा? Q and not Or P. negative P Q and not and P. Q. मेरे बच्चे implies Q. This is by distributive property. चलो अभी क्या करोगे डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद? कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट. अभी फर्स्ट ब्रैकेट complementary हो में जाएगा. कॉम्प्लीमेंट क्या सेकंड ब्रैकेट में कॉम्प्लीमेंट होगा? फर्स्ट ब्रैकेट. First. फर्स्ट ब्रैकेट में कॉम्प्लीमेंट्री. बोलो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री? क्या आएगा? एंड मतलब C. C और ब्रैकेट में Q एंड नॉट P implies Q. This is complement. Not P implies Q. अभी आइडेंटिटी. और मतलब दो स्टेटमेंट है ना बेटा. दो स्टेटमेंट है. C एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है. और मतलब T. और मतलब T है इसमें? नहीं. है. तो क्या आएगा? Q and not P implies Q. This is my identity law. अच्छा ठीक है. अभी ये implication, how will you remove implication? Anybody have idea how to remove implication? Not P or Q. Equivalent property. Yeah. It is not P or Q. चलो, can you apply implication property here? Negation of first Q or and second. Negation of Q and not P or Q. This is by equivalent property. This is by equivalent property. Negation of first or second. Negation of first or second. Negation of first. अभी इसके बाद खुद करो. अभी क्या आएगा बताओ इसको? What will come? De Morgan. Very good. Param Shah. Very good. De Morgan. First bracket में there will be De Morgan. बताओ क्या आएगा De Morgan से bracket? Negation Q or P. Negation Q or P or Q. This is by nothing but De Morgan. इसके बाद De Morgan के बाद कौन सा आएगा? Associative. डिस्ट्रीब्यूटिव आएगा. Associative आएगा. फर्स्ट थर्ड के फर्स्ट सेकंड के सेकंड थर्ड. कुछ भी चलेगा. नहीं कुछ भी नहीं चलेगा. फर्स्ट थर्ड ब्रैकेट में आएगा और P बाद में आएगा. दिस इज बाय एसोसिएटिव. अभी क्या करेगा? एसोसिएटिव के बाद व्हाट विल हैपन हियर? कॉम्प्लीमेंट. व्हाट इज दिस? कॉम्प्लीमेंट. और मतलब P और P. दिस इज बाय कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट के बाद T. Identity. आइडेंटिटी लॉ. ओह माय गॉड सर कैसा है? इससे टेबल इजी है. कभी टेबल ही इजी होता है. ये लोग बोलेगा ना विदाउट टेबल तो आपको ये माथा कूटे. बाकी माथा कूट नहीं जाने का. ऐसा चंगला हो जाएगा. हाँ रूल्स पता है सब ना. यू कैन एंजॉय. इफ यू नो रूल्स यू विल एंजॉय. एंड सर इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी पाछू समझाओ ने. इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी वाली ना स्टार्टिंग की समझाओ. हाँ सर स्टार्टिंग से समझाओ. कोई चिंता नहीं करવાની. આ સમજો 4 વર્ષ સોલ્વ કરું છું. મને પહેલા કયો શું હશે ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટીમાં? ઇઝ ઇટ કોમ્પ્લિમેન્ટરી અવેલેબલ બ્રેકેટ? નો. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फिर लगा डिस्ट्रीब्यूट लगा. कम ऑन अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ब्रैकेट में क्या आएगा? P एंड नॉट P आउट से और Q एंड नॉट P आएगा. नॉट P implies Q आउट से बेटा. हाँ. હવે આમાં કોમ્પ્લિમેન્ટરી આવશે ફર્સ્ટ બ્રેકેટમાં.
तो C also. बताओ एंड मतलब C C और and ब्रैकेट में Q or एंड नॉट Q P, and not P. दिस इज Q Implies इम्प्लाइज कॉम्प्लीमेंट्री आ गया। अभी दोनों के बीच में दो स्टेटमेंट और मतलब T. P है नहीं तो स्टेटमेंट आएगा ना, Q एंड नॉट P implies Q, ये हो गया बाय आइडेंटिटी। नाउ आई वांट टू रिमूव द इम्प्लीकेशन। हाउ टू रिमूव इम्प्लीकेशन? नॉट P और Q, नेगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड, नेगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड, नेगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड, नेगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड। बताओ क्या नेगेशन ऑफ फर्स्ट मतलब negation of Q and not P or second, negation of first or second, equivalent property, negation of first or second, negation of first or second. Come on, expand this property, beta. What will happen if you expand this? De Morgan's law. Apply De Morgan's law. negation Q or P. Negation Q or खाली P or Q. This is De Morgan's law. Now association. First and third association, not Q and Q और P, associate किया first और third को। अभी और मतलब P, और मतलब P complementary formula, उसके बाद identity formula और मतलब P, and this is nothing but tautology. This is nothing but tautology. Come on, last sum of a chapter, fifth sum. Come on, try fast yourself and get me the answer. सिंपल से लास्ट सम बहुत सिंपल है। हो गया लास्ट सम? हाँ हाँ सर बहुत अच्छा। लास्ट सम बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, अरे इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है, ये चैप्टर में ये पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने लास्ट में रखा है। इट इज P एंड ब्रैकेट में नॉट P और Q ब्रैकेट की मार्क और नॉट Q, बताओ इज इक्वल टू P। कौन सा ब्रैकेट में कौन सा रूल आएगा? इन बॉक्स ब्रैकेट कौन सा रूल आएगा? Associative law. हाँ, एसोसिएटिव लॉ आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। इट इज P एंड ब्रैकेट में नॉट P और Q और नॉट Q है ना, तो इसमें और सेम है। सेकेंड एंड थर्ड एसोसिएट करो। P एंड बॉक्स ब्रैकेट में नॉट P और ब्रैकेट में Q और नॉट Q, दिस इज नथिंग बट बाय एसोसिएटिव लॉ है ना। પછી और मतलब Complement. जी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री और मतलब T. और मतलब T, दिस विल बी और T, दिस इज बाय कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बाद में बेटा आइडेंटिटी है। बोलो उसको से और मतलब T, आइडेंटिटी। अब एंड मतलब C. खाली P रहता है यहाँ पर P, दिस इज अगेन आइडेंटिटी, सेकेंड टाइम आइडेंटिटी हो गया, विच इज नथिंग बट राइट हैंड साइड हो गया। So your chapter is 100% the end. Next lecture we will just revise this and and I expect you to solve the objective from the textbook. There are solve करना doubt है तो we will just explain that objectives and उसके बाद